थैंक यू सो मच। अब हम कल की रिपोर्ट मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। To present a report of the previous day. The day started with a sweet melodic environment related Almighty God. After that, at 6:30, we all assembled for exercise with Sri Arunesh Vash, HM KV Gomti Nagar, and Sri Yashodhan Vaze sir, HM KV Khargone. Yoga session managed by Ankit sir from one of us participants. That was fantabulous. और उसमें एक बात मैं ऐड करूंगा कि योगा सेशन सर बहुत अच्छा था। आपने जो घुटनों में तड़कने भड़कने की बात की, अगर उसका प्रयास थोड़ा और करते तो शायद उसकी कटोरी बाहर आ जाती। पर वाकई बहुत अच्छा था, अभी भी दर्द है। After that, we got ready and had the breakfast. Funnel cake was mouth-watering. जलेबी बहुत अच्छी थी, सच में। मैंने 3 खाई हैं, आप लोगों ने कितनी खाई मुझे दिया। In his sweet and gentle tone, he informed us about the upcoming sessions. That to make fruitful, the guest speaker will come and join us. Well, मैं जेपी सर के बारे में एक बात कहूँगा कि इतने स्वीट और जेंटल टोन में कोई भी बात वो कह डालते हैं। वॉइस टोन से ना काम कराना बड़ा मुश्किल होता है। सर अभी आप हम लोगों से नगर motivated us by telling that nothing is impossible for the KV teacher. Yes, of course. Discussed about emotional well-being, previous experience with students, given directions for cultural night, how to manage all the things. This way it shows how experience matters, sir. Thank you. In the continuation, Sri Yashodhan Vaje, KV Khargone, sir, taken the update of the task assigned yesterday of a skit presentation. From each group, every participant presented their skits with the perfect efforts. Learn a lot about the skit presentation. It may help the students understanding and visualizing the language. After that, we had a tea break. The next session, which was taken by guest speaker Mr. Karan Indulkar and his co-assistant Ms. Khushi Dikshit on a topic use of puppets in our classroom. It was very much creative. He told us by doing practical that with the minimum resources like paper, cloth, stick, puppets. Then we had a lunch. After lunch, we were ready for next session, which was taken up by Srimati Srinkhala Shahu, TGT online mode. ऑनलाइन मोड से हम सब बहुत पहले से परिचित हैं। कोरोना के बाद से कुछ ज्यादा ही उससे परिचित हो गए हम लोग। She taught us how to make masks. She also taught us how to make 3D masks in order to make any role play more effective. Everyone participated very enthusiastically and performed very well. मैम हमें हिरण बनाना सिखा रही थी। मैं कब गाय पे आ गया था मुझे पता नहीं। फिर सर आई विल टीच जस्ट ओनली 2 मिनट। फिर then went for last cup of tea session of the day. Next session was taken by Sri Yashodhan Vaje sir, HM KV Khargone. Sir assigned a game called Damsaraj, giving a single object to perform several activities and identify it correctly using your sensory organs, which shows us multi-dimensional approach, observation and visualization. It may work among
students to develop their language skills. Through an AI-based game, Akinator, we come to know an idea that we can use such objects to discover the facts. It emphasizes on critical thinking also. The day ended with the gentle words by Sri J.P. Singh sir regarding cultural night. It was an amazing day, very fruitful. We all learned a lot. Thank you. Have a nice day. आज का हमारा चौथा दिन है इस वर्कशॉप का और बहुत खुशनुमा माहौल में आज की शुरुआत हम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत अच्छा। ओके, तो आज हमारे बीच में फिर से मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। तो एक बार फिर से स्वागत सर का। और सर पहले दिन सर ने सेशन लिया था तो उस दिन सर ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई थी जो आपको एक आइडिया मिला कि थिएटर का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन में और क्या एग्जैक्टली थिएटर इन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। आज जो सर का टॉपिक है वो है थिएटर इम्प्रोवाइजेशन गेम्स और उसके साथ ही कुछ प्ले, और सर अपने स्टूडेंट्स को भी लाया है तो उनका भी कुछ परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सर इस पूरी फील्ड के एक मास्टर मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश भर में इनका नाम है और इसमें लगे हुए हैं सर अपने नई पीढ़ी को भी तैयार करने में। अधिक समय नहीं लेते हुए मैं सर से निवेदन करता हूं कि सर अपना सेशन शुरू करें। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी सर। केवीजी के आदरणीय डायरेक्टर सर, आदरणीय यशोधन वजीर सर, जेपी सिंह सर, आदरणीय वशिष्ठ सर जो लखनऊ से हैं, उनकी नगर से, और आप सभी सुधी सुसंस्कृत विद्वत शिक्षक वृंद, आप सभी को प्रणाम। रंगमंच बिल्कुल प्रायोगिक कला है और जैसा कि हमारे हरियाणा के भाई ने उस दिन कहा था कि सर थ्योरी बहुत पढ़ी थी और इस ढंग से, लेकिन समझ एक्चुअल में कराना कैसे है, तो मैं मूल प्रयोग पर आऊंगा। लेकिन उस दिन हम लोगों ने रंगमंच की ओवरव्यू की चर्चा की थी, फिर उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिकल काम किया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ परिचर्चा की थी। तो मैं आज के सेशन में सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा 4 दिन में आप लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या हुआ, उसमें कौन सी चीजें हैं जो कंफ्यूजन कर रही हैं, या पपेट फॉर्म हो या मास्क मेकिंग हो, या तो उनकी हम चर्चा करेंगे, ओवरव्यू पूरा देख लेंगे और किस ढंग से हम बच्चों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो आज का मूल विषय है थिएटर गेम्स एंड इम्प्रोवाइजेशन, तो उसको करेंगे भी और उसको हम समझेंगे भी कि एक गेम से 10 गेम हम कैसे बना सकते हैं। वही गेम आप कॉन्टिन्यूटी में 1 महीने कैसे कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे वो डेवलपमेंट हो जाएगा और बच्चे का भी विकास होगा। तो मैं दिल की गहराइयों से जीत का बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं। और मैं जब रंगमंच को इतने परिष्कृत और परिमार्जित रूप में आप तक प्रेषित किया जा रहा है, तो मुझे व्याख्यान से ज्यादा अपने विषय की जो प्रचार प्रसार है और जो विषय की जो महत्वता को जीत बढ़ा रहा है, जो यशोधन वजीर सर है, जेपी सिंह सर है, अनुराग यादव सर है, मतलब पिछले 5 सालों से लगभग मैं आ रहा हूँ, हमेशा टॉपिक कोई और होता था, उसके बीच में थिएटर एक लेक्चर होता था। आज मतलब पूरा ही है यूज ऑफ थिएटर एंड सिनेमा इन एजुकेशन, मतलब एक अद्भुत है। और आप जब हबीब साहब को पढ़ रहे हैं, काबुल नारायण पढ़ितकर को पढ़ रहे हैं, तो जितनी प्रसन्नता आपको उससे ज्यादा मुझे हो रही है कि हाँ, अब हबीब साहब हमारे जन जन तक पहुंच गए हैं। और लगभग 42 विद्यालयों से आप केवी से आए हैं, तो लगभग 42 स्कूल में हमारे हबीब साहब पहुंच गए हैं। तो बच्चे भी जब रंगमंच के प्रति, मैं नहीं कहता आपके बच्चे जब रंगमंच करेंगे या वो बहुत बड़े स्टार बने या रंगकर बने जाए या थिएटर में जाए, लेकिन कभी वो कहेंगे तो आप अन्य टीचरों की भांति नहीं करेंगे अरे फालतू की नौटंकी होती है, इसको साइड में रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि ये तो बहुत परिष्कृत और परिमार्जित कला है। और मैं अपनी कला के लिए बढ़ाई चढ़ाई करके नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल बात बोलूंगा, थिएटर का व्यक्ति कभी आपको 99% फ्रस्ट्रेट नहीं दिखेगा। वो दुनिया की जिम्मेदारियों से, जद्दोजहद से डिप्रेशन में नहीं आएगा। और आप देखेंगे सिनेमा के पास सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, लेकिन फिर भी सुसाइड हो रहे हैं। थिएटर में एक व्यक्ति दिखाओ 90% अभाव में रहते हैं। कभी झोला छाप दिखेंगे आपको, कई बिल्कुल पड़े हुए हैं, अपनी कला में जी रहे हैं, पता चला सुबह खा लिया शाम को पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन के प्रति इतने सकारात्मक होते हैं। ये दृष्टि हमें रंगमंच देता है।
क्योंकि रंगमंच जो है वो हमें दूसरे की लाइफ को सिखाता है कि हमें करेक्टर दूसरा करना है। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं किसी का टीचर नहीं हूँ, तो आपकी अप्रोच क्या होगी? मैं जब मिश्रा जी का करेक्टर करूंगा तो मुझे ये देखना पड़ेगा मिश्रा जी का बाहर का बॉडी लैंग्वेज क्या है और अंदर की साइकोलॉजी क्या है, क्या सोच रहे हैं। किसी शब्द को जब ये बोलते हैं तो उनका टेक्स्ट क्या है, प्री टेक्स्ट क्या है और आफ्टर टेक्स्ट क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो ये समझने की। तो बिना किसी औपचारिकता के आपके मन में कुछ सवाल, पहले मुझे कोई भी ये बताइए क्या क्या सीखा इन 4 दिनों में जी। सर इन 4 दिनों में जैसा आप बता के गए थे, 3 दिन आज चौथा दिन चल रहा है, ठीक है। हमने सर खुद प्ले भी किया है, बहुत बढ़िया। पूरा नाटक का मंचन किया है। कौन सा नाटक किया? सबने सर, सब ग्रुप ने अपना अलग अलग विषय अलग अलग थे। कौन से विषय थे? एक तो रत्नाकर डाकू का विषय रत्नाकर डाकू का, ठीक है ठीक है, पेड़ के संबंधित था सर कि पेड़ नहीं काटने चाहिए। बहुत बढ़िया। उसमें बोलने वाले भी करे हैं सर, बिना बोलने वाले भी किए हैं। बहुत माइम भी किया। आज हम आपके लिए माइम ही लेके आए। माइम की लगभग 20 मिनट की प्रस्तुति हो गई। माइम देखिएगा। उसके अलावा सर जो हमारी एनसीईआरटी की जो किताबें थी बच्चों की, बहुत बढ़िया। उन किताबों से कहानी लेनी है या उनसे अलग भी हो सकती है, कहानी लेनी है और कहानी के संवाद, लेकिन आप अपनी भाषा में उसको कैसे? कहानी को संवाद के थ्रू कैसे आप डिस्प्ले करेंगे, बहुत वो सब किया। तो सर अपने जो सिनेमा रिलेटेड, थिएटर रिलेटेड जो चीजें हो सकती थी, मोटा मोटा हाथ सब पे एक बार सबको छू लिया है सर। बहुत बढ़िया। डांस भी सीखा। डांस के थ्रू भी मुजाई गंबा सिंह जी आए हैं, बढ़िया। मणिपुरी डांस और बढ़िया। पपेट सर, 4 तरह की पपेट के बारे में कल कौन कौन बताया। मेकिंग सर उसमें फिंगर था, क्लोथ थी और पेपर थी और स्टिक। उनके द्वारा कैसे हम अपने एजुकेशन को, बच्चों के चैप्टर को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। उसके बाद सर मास्क बनाना। मास्क बनाना किस तरीके से सीखा? ऑनलाइन 2D और 3D सर, वो 3D भी सीखा था। अभी उसका सर प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। अभी छुट्टियां पड़ेंगे तो उसमें घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे कैसे बनाएंगे और यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे। नहीं, आपको अगर थोड़ा समय मिले तो एक दिन हमारे विभाग में आधा घंटे के लिए विजिट करना। आपको मास्क मेकिंग दिखेगी, हमारे बच्चे बनाते हैं और बहुत सरल तरीके से। एक दिन में भी मास्क रेडी हो जाता है, आधे दिन में भी रेडी हो जाता है, बहुत तरीके हैं। ठीक है, गुड। और ये सब सीखा और पुनः फिर हम आ गए वही, फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। सर हम वेट कर रहे थे आपके आने का। थैंक यू सो मच। सर कल से वेट कर रहे हैं। वाह, थैंक यू मैम। कुछ लोग तो कह रहे थे कि हम नहीं आएंगे। नहीं, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, कारवां है। अच्छा, अब आपके मन में कोई सवाल, जिज्ञासा हो जो उस दिन के विषय से लेके आज तक कोई पैदा हुई हो जी। अभी आपने फ्रस्ट्रेटेड वाला बोला, वो क्यों नहीं होते? हाँ, क्योंकि हर कोई होता है। नहीं, देखिए, एक उतार चढ़ाव है जीवन का, अगर पारिवारिक वो है तो होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसका, लेकिन उसका रेशियो क्या है कि हम लोग एक्चुअली जीवन को जो है ना, वो जैसे आप कहते हैं ना टॉप व्यू, एक फ्रंट व्यू, एक साइड व्यू, है ना, लेआउट प्लान जब चेक करते हैं, आप देखेंगे कि किसी बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे खड़े हो तो हमें ऐसे देखना पड़ता है, तब वो बिल्डिंग दिखेगी, और जब बिल्डिंग के सबसे टॉप पे होते तो हमें ऐसे देखते हैं उन चीजों को। तो थिएटर क्या है, बेसिकली आपकी साइकोलॉजी से खेलता है। और एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं सिगमंड फ्रॉइड, जिसको स्टेनिस्लावस्की ने कोड किया था। उनकी पूरी की पूरी जो कंसेप्ट है उसको स्टेनिस्लावस्की ने अडॉप्ट किया। मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको, यथार्थवाद, रियलिस्टिक के जो कंसेप्ट लेकर आए। तो ये दिखाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है सर? हितेश भारद्वाज। हाँ, हितेश भारद्वाज जी का मुझे चरित्र करना है। हितेश भारद्वाज जी केवी के एक टीचर है। अब जैसे टीचर की एक रूपरेखा बनती है, डॉक्टर की रूपरेखा बनती है, तो हमने कोट पहन लिया, आला लटका लिया, डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं होता। ये तो एक बाहरी आवरण है। या किसी बूढ़े का है, तुमने ऐसे बूढ़ा कर लिया, लेकिन सारे बूढ़े ऐसे नहीं होते। 80 साल के बूढ़े भी योग कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से दौड़ रहे हैं। तो हितेश जी जो है वो, उनका व्यक्तित्व क्या है, बाहरी, तो एक एक्सटर्नल चरित्र हो गया। फिर उनका इंटरनल क्या है, हो गया। अब हम जब बार बार चरित्र को जीते हैं, छोड़ते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो कितने सारे जीवन में हम उनकी जद्दोजहद को भी देख लेते हैं। एक साइको किलर है, तो साइको किलर का जब वो करेक्टर करता है तो समझता है कि यार अब वो असली में साइको किलर थोड़ी ना बन जाएगा। पता चला उसको मर्डर करना है और 10-12 मर्डर करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना अब नाटक के बाद फिर वो मर्डर ही करेगा, और चलते नाटक में मर्डर कर दिया तो जेल हो जाएगी। लेकिन वो उसकी साइकोलॉजी से खेल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसका मूल्यांकन कर रहा होता है कि ये परिस्थिति क्यों निर्मित हुई। तो ना चाहती हुए भी बहुत सारे जो समाज में किरदार हैं, लोग हैं, उनके जीवन के जो अंग हैं, उनके जीवन की जो जिसको कहे अनुभव है, वो अनचाहे रूप में वो पा लेता है। तो कहीं ना कहीं वो सीख जाता है, यार गुस्सा मेरे को भी आती है कभी कभी कुलपति जी पे,
कभी कभी कुल सचिव जी पे भी आती है, लेकिन नहीं, यहाँ निपट जाओगे। होता है कि सर साइन तो आपकी है सर, ऐसा वैसा, लेकिन जी सर, जी देख लेंगे सर, ये अभिनय है और इसी में अपन थोड़ा सा उग्र हो जाते हैं तो चीजें बिगड़ जाती हैं। इसीलिए रंगमंच क्या है, आपको बेसिकली दिमाग के रूप से परिपक्व करता है। और थिएटर 3 विधाओं पे काम करता है, 3 तरीके से ट्रेनिंग देता है, बॉडी, शरीर। सबको मालूम है, कई लोग आपने देखे होंगे जबरदस्त पर्सनैलिटी है, ऐसे चल रहे हैं, है ना। कुछ लोग आपने देखे होंगे, व्यंग्य विनोद नहीं है लेकिन इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारी कोई बच्चा ग्रेजुएशन में 10+2 के बाद, विशेष रूप से पंजाब चंडीगढ़ की तरफ अगर मैं आपको बताऊं, तो गांव से आते हैं लड़के या लड़कियां जो भी है, और एकदम शहर का माहौल मिला, तो कपड़े तो पहन लिए उन्होंने, हील और सब, और फिर चल ऐसे रहे होते हैं। तो आ तो गए आप, लेकिन आप उसको कैरी नहीं कर पा रहे। कोई अंग्रेज अगर गांव की साड़ी पहनती है तो उसको कैरी नहीं कर पाती। सलवार सूट जितना अच्छा आप कैरी करेंगे उतना और कोई नहीं कर पाएगा। तो मूल रूप से एक तो बॉडी लैंग्वेज पे काम करता है थिएटर, कि मेरा खुद का बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैं कैसे चलता हूं, आपको खुद को ऑब्जर्व करा रहा है। कि बेसिकली अब आपको इतनी एक्सरसाइज करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि यार मैं कैसे चलता हूं, जब मैं बैठता हूं तो कैसे बैठता हूं, मेरा सिटिंग पोजीशन ये होता है, कमर ऐसी होती है, अच्छा गलत है, ये गलत है, उसको सुधार सकते हैं। तो एक तो आपने अपने बारे में जाना, दूसरा दूसरों को दूसरे के बारे में जाना, तीसरे के बारे में जाना, तो आपको मालूम चला। और शरीर का अभिप्राय सलमान खान की बॉडी नहीं है, सलमान खान की शरीर मतलब आपका बेसिकली बॉडी का लैंग्वेज क्या है, उसकी एक भाषा होती है, और उस भाषा को हम सीखते हैं रंगमंच के माध्यम से। तो एक शरीर पर नियंत्रण हुआ, दूसरा है वाणी, वाचिक टोन क्या है, हम लोगों को मालूम, हम लोगों को अनजाने रूप में हमें ये मालूम नहीं है कि हमारा स्वर कौन सा है, पिच कौन सी लग रही है। आज अगर हारमोनियम आई होगी तो मैं उसकी कुछ रिहर्सल कराता हूं आपको, तो किस सुर में मैं बोलता हूं। कुछ लोग होते होंगे, अरे भैया क्या कर रहे हैं, है ना, अरे भैया क्या कर रहे हैं, अरे भैया क्या कर रहे हैं, अरे भैया, है ना। तो ये सुर का टेम्पो कौन सा है, मेरा कौन सा है। अब मैं जो चरित्र का करूंगा तो कौन सा है। अब मेरे को बच्चे का नाटक कराना, बाल नाटक करा रहा हूं, चालाक लोमड़ी चतुर शियार, तो लोमड़ी की आवाज कैसी होगी। अब लोमड़ी की आवाज तो ऐसी नहीं होती, क्योंकि लोमड़ी तो बोल रही है, तो कल्पना है, कहीं ना कहीं लोमड़ी स्त्रीलिंग है, तो थोड़ी सी स्त्रीलिंग वाली आवाज आएगी, अरे बेटा कर रहा हूं। जैसे शियार आएगा तो मेल डोमिनेंट है, तो उसकी आवाज भारी हो सकती है, तुम आ गए, है ना। तो हमें अपनी वाणी से, दूसरा आप देखेंगे बहुत आप विद्वान लोग हैं, आप देखेंगे 90% इस दूरदर्शन आकाशवाणी को छोड़ दें तो ज्यादातर पत्रकार अशुद्ध बोल रहे होते, उनको भाषा का ज्ञान नहीं हो। थिएटर तो सबसे पहले भाषा पे काम करता। आप अगर हिंदी भाषा रंगमंच कर रहे हैं तो आपकी हिंदी शुद्ध होनी चाहिए, भले ही आपकी परिष्कृत परिमार्जित वैसी ना हो, लेकिन कम से कम आपके उच्चारण, कहाँ जा है, कहाँ वाह है, कहाँ सा है, कहाँ शाह है, ये सब उच्चारण ठीक होना चाहिए। कहाँ पॉज होना चाहिए, कहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। हम लोगों ने अनचाहे रूप में कक्षा 10 तक पढ़े हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया। तो हमें एक भाषा पे काम कराना सिखाता है, पिच क्या है, वॉल्यूम क्या है, रिदम क्या है। इसके बाद आता है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, माइंड। अब माइंड को कैसे डेवलप करोगे। माइंड का डेवलपमेंट होता है सबसे पहले पढ़ाई से। आप जितनी कहानियां पढ़ो, जैसे हमारे जीवन में, मेरी उम्र अभी लगभग 30 से 37 के आसपास है, तो मेरे पास इतने ही साल का अनुभव है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। लेकिन मुझे किरदार करना एक 68 साल के व्यक्ति का, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं नकली करूंगा, लेकिन मैं देखूंगा 68 साल का व्यक्ति मेरे इर्द गिर्द कौन है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसको कॉपी करूंगा कहीं ना कहीं। वो सारी फिल्मों में ऐसे ही होता है। नसीर साहब की अगर आप वो देखेंगे, या इरफान साहब, या हबीब साहब, तो हबीब साहब के बारे में दृष्टांत बताता हूं। हबीब साहब देवानंद की एक फिल्म में काम कर रहे थे, और सीन था कि हबीब साहब को रोना है, रोना नहीं आ रहा था बार बार। उन्होंने कहा जरा और ऐसी कुछ समझाते समझाते एक गाल में दिया खींच के, ये यथार्थ घटना है हबीब साहब की, और फबक फबक के रोने लगे एकदम, क्योंकि देवानंद साहब उनसे बहुत बड़े थे, उम्र में भी थे, सीनियर भी थे, तो रोने लगा। वो सीन शूट कर लिया। तो उन्होंने कहा बेटा रोना कभी कभी ऐसे भी आता, कोई जरूरी नहीं है कि, कई बार क्या होता है, हमारी जो फीमेल होती है उनके पास करुण का भाव ज्यादा होता है, हमारा जो मेल है उसके पास वीर और थोड़ा सा रौद्र नहीं, मतलब वीरता और थोड़ा उत्साह का भाव ज्यादा होता है, लेकिन कई भाव हमें लाने पड़ते हैं। तो मूल रूप से माइंड को आप कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन से। हम अपने इर्द गिर्द सोसाइटी, सबसे पहले तो बच्चे की ऑब्जर्वेशन अपने घर से शुरू हो जाती है। मम्मी कैसे बोलती हैं, पापा कैसे बोलते हैं, पापा कैसे चलते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन क्या है। फिर हमें बहुत सारी कहानियों से, अब हमें नहीं पता कि झाड़ू पे भी कोई आदमी उड़ता है, हैरी पॉटर उड़ता है, ये कल्पना है,
लेकिन उसके दिमाग में ये घर कर जाके हाँ झाड़ू पे भी उड़ सकते, तो उसके लिए बहुत सारी कहानियां हैं। रामायण में हनुमान जी अलग तरीके से उड़ रहे हैं। अब रामायण में हनुमान जी ऐसे ही उड़ते थे, ये तो रामानंद सागर ने दिया भाई। रामानंद सागर ने जब पहली बार बनाया तो जैसा विजुअल कर दिया वैसे हमारे दिमाग में वो बन गया, और इतना यथार्थ कर गया कि हनुमान जी को सब ऐसे ही उड़ाते, शक्तिमान की तरह नहीं उड़ाते। शक्तिमान अलग फॉर्मेट में घूम रहा है, एक वो स्पाइडरमैन के फॉर्मेट में घूम रहा है, सबके अलग अलग। तो ये भी हमारे जो चीजें हमें सोसाइटी समाज उन चीज उनको हम साहित्य से ग्रहण करते हैं। तो ये 3 चरणों पर, 3 केंद्र बिंदुओं पर, 3 एलिमेंट्स पर काम करता है थिएटर, बॉडी, वॉइस और माइंड। यही जीवन के लिए जरूरी, इसलिए एक परिष्कृत परिमाण। जी और कोई? हाँ जैसे आपने अभी कहा कि वाणी का रोल बहुत ज्यादा है, तो उच्चारण के विषय में सर आपने बोला, तो उच्चारण कई बार हम लोग प्राइमरी टीचर है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो उच्चारण जैसे हम लोग कैसे शुद्ध कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे उच्चारण शुद्ध हो सके? तो बहुत बढ़िया। नरेंद्र हारमोनियम वाइब्रेट जरा लिया प्लीज। डेली आप घर में भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी क्लास में करा सकते हैं, प्राइमरी बच्चों के लिए जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद सारे गा सारे गा सारे गा सारे गा रे गा मा रे गा मा रे गा मा रे गा मा गा मा पा गा मा पा गा मा पा गा मा पा मा पा धा मा पा धा हो रहा है, शब्द आ गया पा, रे पे पा पा बिना ओठों को जोड़े मां बोल के दिखाओ। एक तो लिप्स की एक्सरसाइज, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके तालू में प्रॉब्लम आती है, लिप्स में प्रॉब्लम आती है, तो ये शब्द है। एक तो आप दो तरीके से काम कर रहे हैं, एक उच्चारण, दूसरा उसकी टोन। हो गया आगे, साउंड साउंड सुर में लेना,
चालू वाला है। हो गया, स्लो फिल दूर हो गई, गले की खराब। अभी और रुक जाओ, 5 मिनट और कराते हैं जबरदस्त। अभी तो ये प्रारंभिक चरण है, अब इसमें देखिए क्या क्या होगा। इसमें होठ के आगे थोड़ा सा ये लगा लो। बाइक चलाते हैं बचपन में, जो बच्चे शरारती रहे, जो टीचर शरारती रहे, वो जबरदस्त टैलेंटेड हो गए। साउंड है। अब सुर पे करेंगे अपन, ये बाइक सुर पे चलेगी। अब इसको गाने गा लो। क्लियर है ना? साउंड लिप सिंक के अलग हो गए। अच्छा, इसके बाद एक जा जा, दोनों दांतों को जोड़िए, पीछे से जीभ लगाइए। अब वाइब्रेशन होगा। अब इसको सुर पे आ जाइए। यहां झंझनाहट होगी, अगर हो रही है तो सही कर रहे हो। सुर में सुर चले गए, सुर से आओ। सुर को ध्यान रखना। ऐसे करो, कौन कहता है गायक नहीं हो, सब गाने लगोगे। हाँ, गारंटी है इसकी। कोई गायक का कोई सुर नहीं, वो नहीं होता। हाँ, ये जरूर है जिसकी बचपन में आवाज अच्छी होती है वो ज्यादा अच्छे तरीके से गाता है। लेकिन गुलाम अली खान साहब की आवाज सुनी है आपने? चुप, आवाज देखना, वो रियाज की आवाज। तो अगर आप ऐसे रियाज करोगे तो अपने आप सुरीले हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब आइए, सुर मत छोड़ना, सुर मत छोड़ो, यूं मत करो यार भाई। सुर में रहना है ना। सा पकड़ के रखो। अब देखो, एक बार सुनो जरा। गांव की महिलाएं होती हैं, रोदाली आपने देखा होगा, तो उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। सामने वाला कौन मरा कौन दिया, आ रही है बढ़िया, काय बहन जी ठीक हो, हाँ बहना मिलती रहना, बात चल रही, जैसी देखा चालू। तो बेसिकली वो सुर का ही ज्ञान है, वो सुर पे ही चल रही है। अब उनका अलग अलग सुर के हिसाब से रो रही है। देखो, सुनना एक मिनट। रो रही है, समझ गए? चलिए आइए। तो रोना भी सुर में था तो कभी गला खराब नहीं होगा। आइए, अब इसी सुर पे एक दो डायलॉग भी लेना, मार डालो।
अब नीचे जाओ। अरे क्लियर, एक बार ताली अपने लिए। अब में पहुंचते हैं। अब कोई देखना तो आपको मालूम चल जाएगा। सांप हंस रहा है ऊपर वाले पे, नी पे हंस रहा है, नीचे के भी सुर लग रहे हैं। हर आदमी, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बेसुरा या बेताला हो। समझ नहीं है, बस सब कोई गा सकता। आपकी चाल में रिदम है। प्रशांत भाई ऐसे चल रहे होंगे, है ना, कोई ऐसे चल रहा होगा, ये ताल चाल अलग है। कोई हल्का सा चल रहा होगा। जो आप सलमान बलमान सब देख लो, सब में रिदम है। और थोड़े से ताल का नट ढीला कर दो, हो गया। यही रिदम का गेम है। तो आड़ा ताल, तीन ताल, झप ताल, ये म्यूजिक वाले जो सिखाएंगे वो अपने पास है, चिंता की जरूरत नहीं है। चलिए एक गाने गाते हैं, फिर उसके बाद बाहर चलते हैं। जय कौन सा तुम्हारे गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, गौरी नंदन गणनायक, जय गौरी नंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, तू चार भुजा धारी है, तू चार भुजा धारी है, मस्तक सिंदूर निराला, मूषक वाहन तेरा, तू ही जग का उजियारा, तू ही जग का उजियारा, तेरी सुमिरन हर पूजन में, तेरी सुमिरन हर पूजन में, सबसे पहले सुखदायक, सबसे पहले सुखदायक। अब इसमें थोड़ा सा जैसे म्यूजिक वाले खेलते हैं, सबसे पहले सुखदायक, सबसे पहले सुखदायक, जय गणपति वंदन। तो गीत गा सकते हैं आप अपनी क्लास में, पाठ्यक्रम में, जो पाठ्यक्रम के जो चैप्टर है, जैसे एक संवाद पे प्रयोग करके दिखाते हैं आपको। जैसे बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, उसमें है मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। अब देखिए, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। अब देखो, तुम्हें पता है वो कहाँ जा रहा था? हाँ, उसने कहा तुम आओ। सुर के हिसाब से आपकी पिच बदल जाएगी, कहाँ स्तर में बोलना है, कहाँ बोलना है, इससे खेलो आप। पाठ्यक्रम का भी कहा पढ़ाओ। अरे बच्चे एंजॉय करेंगे साहब, क्या हो रहा है। अच्छा एक शब्द इस तरह ऊपर नीचे करके देख लो, मेरे बा, मेरे भाई साहब, ये आप करेंगे ना
तो अलग अलग प्रयोगों में चीजें आ जाएंगी, जिनसे शब्द है, उनका उच्चारण है, एक शब्द पर रहना है, अलग अलग चीजें। थैंक यू सो मच। हम लोग बाहर चल रहे हैं, 11 बजे तक है ना मेरे पास समय, बहुत तो हम लोग बस जल्दी 2 मिनट में आप लोग बाहर पहुंचे। हम लोग बढ़िया से कुलपति जी नहीं छोड़ेंगे, नहीं एक आध दिन ले सकते, कलेक्टर में घुस जाइए, बढ़िया। फ्रीज विथ पोजीशन, कुछ ना कुछ इमेज बननी चाहिए मूर्ति की तरह, अभी नहीं चलते रहिए, मूर्ति दिखना चाहिए कुछ मुझे मूर्ति, और मूर्ति कुछ भी जबरदस्त भाव है, मतलब एक एक मूर्ति ऐसी लगे कि हाँ ये सीधी पिकासो नहीं बनाई है। वाह कन्हैया, ये मूर्ति हम कह रहे हैं ना क्या हो गया, आए आए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, तो स्टाइलिश हमारे सारे वाह वाह मैम, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और जबरदस्त कुछ न्यू कंटेंट निकालो जो हमारे एक्चुअली अच्छा ध्यान रखिए, थोड़ा सा चलते रहिए। जो हम सो कॉल्ड अभी मूर्तियां देखते हैं है ना, जैसे खड़ा पिला रही है पानी, ये सब इनके अलग कुछ क्या एब्स्ट्रैक्ट बन सकती है कोई मूर्ति, ऐसा है ना, कुछ ऐसा बना है जो एब्स्ट्रैक्ट हो, मतलब समझ में नहीं आया कि ये बनी क्या है, जबरदस्त। फ्रीज फ्रीज क्रिकेट भाई साहब कौन सी मूर्ति, शालीन मूर्ति, कोई एफर्ट ही नहीं लो, आशीर्वाद ले ले बेटा। ये बहुत अच्छा है, कुछ तक ये भी ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अब जो जो बोलता जाऊं वो थोड़ा थोड़ा फील करते जाएंगे। ट्राई ये करना पोस्टर कैमरे की तरफ रहे तो अच्छा है, और थोड़ा केवी के कैंपस में घूम रहे हैं, केवी के कैंपस में घूम रहे हैं आप लोग, और फील कर रहे हैं कितना खूबसूरत और सुंदर कैंपस है। हाँ, वो फील, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज वो दिखना चाहिए, जो 3 चीजें हैं ना, बॉडी, वॉइस और माइंड, वो फील भी करो। वाह वाह, अति उत्तम। इतने में केवी कैंपस से आप लोग सुनते भी रहो। अच्छा बातें का नहीं बोला मैंने, इतने में आप लोग केवी कैंपस से बाहर निकल चुके हैं, और बदबू से यार चलते रहो, बदबू आ रही है नहीं, और खतरनाक टाइप की बदबू आ रही है, और बदबू को फील कर रहे हैं आप बहुत सुंदर तरीके से आ रही है, दुर्गंध है, बिल्कुल दुर्गंध, हाँ दुर्गंध है, साथ में कब नहीं, ऐसा लग रहा है हमारा कोई साथी है जो दुर्गंध फैला रहा है, आया नहीं है, पता करने की कोशिश करो, और पता न लगने दो कि मैं पता कर रहा हूँ। कौन है, एक दूसरे से पूछो इशारों में, तुम ही हो भाई। कुछ साथी 5 दिन से नहीं नहाए, 14 दिन पादा। अब इसके बाद आप लोग थोड़े से और आगे निकल चुके हो, और कंकड़ चुभ रहे हैं, कंकड़, कांटे लगने लगे, कांटे बहुत ज्यादा कांटे लग रहे हैं, दर्द हो रहा है, कांटा लग रहा है, निकालो उसको, प्लीज 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 प्लीज। सबने जूते पहन रखे हैं, कांटे कांटे लग रहे हैं, कुछ बनो ना बनो, सिद्धांतकार बन गए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इसी को थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे अपन, फील कर रहे हैं, कांटे लग रहे हैं आपको,
और आप एक किसी सुरंग में जा रहे हैं। सुरंग बहुत छोटी है, अभिनय से दिखाइए। ये सारे आप अपने बच्चों से करा सकते हैं। अब सुरंग में जा रहे हैं, सुरंग का रास्ता बड़ा छोटा है और सुरंग में देखिए क्या क्या आ रहा है। चाल, ठीक है, चाल, गंदगी। हमारी सारी मैम जितनी है वो सुरंग को एंजॉय कर रही है। अरे सुरंग सुंदर नहीं है, चमगादड़ है, बदबू है, ककड़ी के जाल है। सुरंग बहुत आपके बॉडी लैंग्वेज से पता लगना चाहिए आप सुरंग में चमगादड़ आती है, चेहरे पे लगती है। चलिए एक काम कीजिए, मेरे पीछे आइए। हम लोग किसी जंगल के उस पर हैं, ठीक है? चलो सुरंग में चल रहे हैं हम लोग। चलिए चलिए, सुरंग में क्या क्या है देखो। सुरंग में चमगादड़ आया, चमगादड़ भी। सुरंग छोटी है, बस इतना रास्ता है, इतना रास्ता, इतने रास्ते में आएंगे सर, धीरे धीरे आइए एक एक करके। हाँ आइए ना, आइए। ये रास्ता में कहाँ जा रहे हो? सुरंग में आप लोग पूरे खड़े हो ही नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। इधर से सुरंग से जाना है, इधर से एक एक करके आदमी जा पाएगा। और चमगादड़ आ रही है, बदबू आ रही है, चमगादड़ आ रही है, बहुत बदबू है। उधर ही से निकलेगी, वही रास्ता है, एक ही सुरंग है। हाँ थपेड़े लग रहे हैं, थपेड़े। चमगादड़ आइए, चलो भाई चलो, निकलते जाइए। हम निकल गए सर, हम बच गए। अरे साइड से खा निकल रहा है मेरे बराबर। वर्टिकल सुरंग खोल ली इन्होंने, सुरंग से दूसरों को बचाना है सर। बदबू आ रही है, अब ऐसे कर लो जो निकल गए वो। चैन मेरा भी आइए, बहुत अच्छे। अब जो सुरंग से बाहर आ रहे हैं बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं। केवी में हम पहुंच चुके हैं, वाह, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, भाई हम लोग आ गए। क्या हो रहा है देखो, पीछे गेम बहुत सिंपल है, बहुत ड्रामेटिक नाटकीय गेम। इसमें दो तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना, सारे सुन लो। अभी पहले आंखें बंद करेंगे आप लोग, मैं किसी को चुपचाप बना दूंगा, टच कर दूंगा, वो किलर है। किलर को क्या करना है, ऐसे घूमना है जैसे आप लोग वॉक कर रहे थे, घूम रहे हैं। और किसी को भी बिना बताए, पता नहीं लगना चाहिए कि मैं किलर हूँ, जाएगा और चुपचाप जाके ऐसी आके ब्लिंक करेगा उसके सामने, ऐसे 2 बार। उसको ये ध्यान रखना है किलर को कि मुझे कोई पकड़ ना ले कि मैं किलर हूं, ये। और बाकी सबको ये पता करना है किलर है कौन। और जिसको ब्लिंक की, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भाई को ब्लिंक की 2 बार, तो ये थोड़ी देर बाद आधा, लगभग 10 सेकंड बाद ड्रामेटिक रूप से मरेगा, मर गया। समझ गए ना? किलर को ज्यादा से ज्यादा मारना है और हम सबको किलर का पता करना है। क्लियर? चलो आंखें बंद कर लो, एक बार करके देखो, एक बार करके देखो, एक बार करके देखो, आंखें बंद कर लो, सभी ईमानदारी से आंखें बंद। गेम चालू, चलिए वॉक कीजिए, चलिए घूम कर किलर मारना शुरू करेगा। जिनको मैंने टच किया वो किलर है,
वो एक दूसरे को मारेंगे। हम भी बता सकते हैं। आप बताना है ना थोड़ी देर बाद। हम लोगों को पकड़ना है, बाकी लोगों को पकड़ना, किलर को मारना है। मारना शुरू कीजिए। ठीक है, बहुत सफाई से किलर को मारना है, अच्छे से चलिए। किलर मारो, मारो जल्दी मारो, किलर मारो, दो चार को मारो जल्दी। अरे यार कैसे किलर हो यार भाई यार, पहले राउंड में पकड़ेगा। चलो बाकी खेलो, अब 2-4 किलर मारे हमें। किलर मारो, अभी तक कोई को नहीं मार पाया। जो मरे हैं वो मर नहीं रहे। बता रहे मैं नहीं हूँ। मुझे डाउट हो रहा है। आपने इनको कलर बताया क्या? आउट कर देंगे फिर आपको। अच्छा गलत नहीं बताया। गलत नहीं होता। और किलर मारो ना भाई। भैया मर क्यों नहीं? भाई देखो किलर में देखो सुनो कितना बढ़िया सब आगे बांध। गो गेम चालू। मैम किलर है। मैम कैसी किलर हो आप? मरो ना भाई, मरना शुरू करो। मरो, ड्रामेटिक मरो। बहुत बढ़िया, क्या बात है, किलर बहुत बढ़िया किलर। नजरें में मिलाएंगे ना मरेंगे। चलिए एक बार तालियां अपने लिए। चलो ठीक। मैंने इनको पास करना है। जिप जैप लेफ्ट तरफ और बीच में आएगा तो क्लियर है ना। तो क्या करना है, जैसे मैंने इनको किया जिप, तो ऐसे फॉरवर्ड करते जाओ। एक बार करके देख लो। जिप जिप करते जाओ। जिप 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 जिप। अब सुनिए, हाँ जैसे जिप जिप जा रहा है। अब किसी ने, हाँ आइए मेरे पास आ जाओ। सर जी पे तो राइट करना था ना, फिर तो लेफ्ट किया। मेरे पास हो जाएगा क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। जैप में सर को के बाद मैडम ही देखना। समझ गए ना? समझ गए? कहाँ से शुरू करें? चलो स्टार्ट। अब लेट हो गया, आउट हो गया। अब देखो मैं आउट कर दूंगा। अब बिल्कुल टाइमिंग का गेम है, लास्ट में जो बचेगा वो जीते। चलो अगेन लास्ट वार्निंग स्टार्ट। आपको करना है। क्या करना था भाई? को काम करो। आपको क्या करना था? चलो बढ़िया, और पो में जंप करो। चलो सारे आउट करो घंटे। गेम का मेन होता था पोकर, जो यही तो दिमाग है। जब जाएगा क्या बोले, अब लास्ट अब आउट कर देंगे। स्टार्ट। जिप फिर से गलत, सही है। चलो चलो दो ही आउट। जब इन्होंने लेटा चलो पास आते हैं। जो जीतेगा वो सेकंड। चलो स्टार्ट।
रिटर्न में जैप जाएगा जैप चलो कट Zap, zap. Oh, zip, zip. चलो आप आओ चलो स्टार्ट स्टार्ट Zip, zip. Paw. Zap, zap. Zap. चलो स्टार्ट और देखो सुनो अब सुनो इसमें एक मिनट सुनो ऐसे मारो और सुनो जिप जैप में जंप नहीं है सिर्फ पो में जंप है यदि जैप में जंप इस पर ध्यान रखना है कॉन्शियस रहो स्टार्ट Zap, zip. मैं जिप ही है ना चलिए स्टार्ट स्टार्ट अरे उल्टा मार दिया नहीं नहीं जिप है इधर जैप वैसे मैंने सर से पूछा था लेफ्ट राइट का, सर ने कहा था वो मैटर नहीं करेगा। आपके इधर इधर हेलो लोग भाई लोग अपनी मौत पे दुखी नहीं है, तेरी मौत पे बहुत दुखी इससे पता लगता है मैं कितना फेमस हूँ। रुक जा ये टीम कंफ्यूज कर रही है ध्यान से सुनना चाहो स्टार्टिंग ही मेरी थी, कोई नहीं करना था। उनको भी कर दिया चलिए चलो स्टार्ट बाद में जाओ उसको पता है हमेशा बहुत बड़ी इसमें होना चाहिए कि इतने चलो स्टार्ट Zip, four. Zap, zap, zip. Zap, zap. Oh, Zip, zip. ध्यान रखना है देखो आप कोई कम बच्चे हैं ये सारे इंटेलेक्चुअल है ना जिप और जैप में जंप नहीं है पो में जंप है अगर किसी ने जिप जैप में जंप किया तो वो भी आउट है स्टार्ट जिप जिप जाओ लेट हो गए आइए स्टार्ट हाँ ठीक है ना इन्होंने लेट दिया आप लेट हो नहीं अरे कोई बात नहीं सर, आप बहुत देर तक खेले, बहुत बढ़िया। हमारे ग्रुप से हाँ सम्मान करें आप। अरे सम्मान
चलिए बहुत बढ़िया, 4 धुरंधर खिलाड़ी। 1 2 3 गो। Zip. Zip. Paw. Zip. Zap. Paw. Zip. अब ध्यान रखना, तीर है, अगर वो में ही जंप है, जिप जैप में जंप किया तो आउट। बोलना था। ना। 1 2 3 गो। दोनों धुरंधर एक बार तालियां। तीनों अपने क्या लड़कों ने नाक करा दी। चलिए 1 2 3 गो। Zip. Paw. Zap. सामने आएगा, सामने सामने जिप जैप बोली, जिप जैप पो। अब दोनों पे ही जिप जैप चलेगा, पो। 1 2 3 गो। मेरे को सेट करना। हाँ। Zip. Zap. Zip. Zap. Paw. Zip. Zap. कौन जीता? ये रेड वाले चलो एक बार तालियां। चल उनको करके दिखाओ जो मैंने करके दिखाया। सेम भूलिए तो अब जो भूलेगा तो करिए। आगे 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 आगे। चलो कोई बात नहीं, कैसे उठाना है? इधर से उठाया, बोलना कुछ हाँ, खाली उठा के दिखाओ। एक्शन करो। ऐसा करके आ जाओ जोन में इनको बता, बोलना कुछ नहीं है। इसका मतलब वही बदल चुका है, हंसी बता रही है वही बदल चुका है। अपने तो बहुत गड़बड़ होता है। पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना। भाई मुझे समझ आ जाएगा। आपको पीछे नहीं देखना है। तो आगे आगे आप लोग आगे देखो। वो रास्ते पता चलेगा। आगे आगे भाई। हाँ भाई सारे देखो, सारे देखो, सारे देखो। आपके पास क्या एक्शन पहुंचा बताओ, बताओ आपके पास क्या एक्शन पहुंचा बताइए ना। अभी करके दिखाना ना, करके दिखाओ।
अब नहीं, ऐसे ही लगे रहो, ऐसे लगे रहो, ऐसे ही लगे रहो। अब एक्शन रिवर्स में जाएगा। चल, ये मिला आपको, क्या मिला? हाँ ठीक है, आपको क्या मिला? हाँ, आपको क्या मिला? आपने क्या दिया था? देखो देखो, चुम्मी यहाँ से ऐड हुई। है ना? अभी यहाँ तक गर्दन ये थी, यहाँ के बाद चलो, आपको क्या मिला? हाँ ये आपको क्या मिला? हाँ आपको क्या मिला? हाँ आपको क्या मिला? ये गर्दन। हाँ आपको करो, करके दिखाओ। ये दाएं मिला यहाँ से। हाँ दाएं आप करके, ये हाँ, ये आंखें, ठीक है, ये इधर ऐसा था। चलो आगे, गर्दन के साथ आंखें, आंखें, हाँ, हाँ, गर्दन, ये यहाँ, ये था, ये था। अब भाई मैंने पता भेजा क्या था? 1 2 3 4 ऊपर, ये थे। अब पहुंचा क्या? सब शांत, हमारे हाथ लग आंखों में, शांत। मैंने ये कराया था, ये गिद्दा के, हाँ, और क्या पहुंचा? ये पहुंचा है। ताली कहाँ गई? गिद्दा कहाँ गया? नहीं पहुंचा ही नहीं। चलो एक बार ताली। है इजी था, इजी। चलिए एक बार करके बनाइए भैया, एक बार सर्कल बनाइए। नहीं वो वहाँ बीच में जो चेंज हुआ ना, नहीं देखो, इनका एक थोड़ा सरल किया था, दूसरा इनके में बचा तो था डांस, यहाँ तो क्या था? दो बातें सर, नंबर 1 एक आसान स्टेप, दूसरा केवल 10 लड़के 3 गुना, ऊपर से लड़कियां सारी ड्रामेबाज, क्योंकि वो नेचुरल, और हम लोग जो है ड्रामे नहीं कर पा रहे। एक बार अपने लिए तालियां, बहुत बढ़िया। और आप लोगों ने अच्छा किया। देखिए अब इन्हीं एक्सरसाइज को कुछ गेम्स हैं, वो आप अपने पर डे करा। वो क्या है? कहने को गेम है, लेकिन मूल रूप से वो थिएटर की इम्प्रोवाइजेशन है और स्किल डेवलपमेंट है ना। ऑब्जर्वेशन का आप दे सकते हैं, चूहा और शेर का एक खेल होता है वो दे सकते हैं, किलर गेम हो सकता है ये दे सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको 2 दिन पहले कराया था कि अपने विजुअल से ABCD से लेके Z तक आप बनाएं, सिग्नेचर का मूवमेंट बनाएं। तो अब आपको कुछ नोट करना चाहेंगे या फिर सिर्फ मैं आपको बता दूं? बता देता हूं, है ना। हल्के हल्के गेम सर अगर हो ही जाएंगे तो याद रहेंगे हमें। जैसे सबसे पहले एक रिकॉर्डिंग कर लीजिए कोई, और ये मैं आपके कोई एक व्यक्ति मेरे से नंबर ले लेना, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो कर दीजिएगा और वो आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जैसे विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से चलना, है ना। वॉक की हम बहुत सारी एक्सरसाइज कराते हैं, है ना।
पूरी बॉडी के थ्रू हम लीड कर सकते हैं, सर से, नाक से, कान से, शोल्डर से। फिर रन है, रन भी बहुत अलग अलग तरीके का होता है ना, स्लो और स्लो मोशन में कैसे चलोगे आप, है ना, या फास्ट रन होगा तो कैसे चलोगे, फिर बॉडी को कंट्रोल करो। फिर इसी तरह से बैठने के अलग अलग पोस्चर हम अपने गांव में देखेंगे तो हर सिटिंग पोजीशन का अर्थ अलग अलग है। गांव वाला कोई जाएगा तो ऐसे बैठ जाएगा, कोई पॉटी वाली पोजीशन में बैठता है, लेकिन उनकी वो एग्जैक्ट पोजीशन होती है। गांव में आप देखेंगे तो उस पोजीशन में वो खाना भी खाते हैं, है ना। तो और ऐसे बैठेगा तो ये आप क्या दे रहे हैं उनको, गांव के जेस्चर्स दे रहे हैं बेसिकली। या शहर में कोई होगा तो कैसे बैठेगा, तो अलग अलग तरीके से 15, 20, 25 प्रकार से बच्चों को बैठाना। फिर चेंज। एक तो शायद आप लोग चर्चा कर रहे थे, सर ने एक गेम बताया होगा, वजह सर ने, कि एक प्रॉपर्टी रख दीजिए बीच में, है ना, वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट है कि उसको अलग अलग डिफरेंट तरीके से यूज कीजिए। उसको अगला क्रम ये कर सकते हैं, उसको कोई कहानी बनाइए। जैसे आपने एक पेन रखा, पेन को माइक ले लिया, इसको माइक बना लिया या कंघा बना लिया, तो इसके साथ एक डायलॉग और जोड़िए। अरे वाह मेरे बाल कितने अच्छे, अरे थोड़ी सी झागा यार लेकिन अब बढ़िया, मतलब 2-3 डायलॉग ऐड करते जाइए, तो उससे इम्प्रोवाइजेशन स्किल डेवलप हो जाएगी। फिर फ्रीज भी अलग अलग तरीके से इसको आप ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कभी मूर्ति, कभी कोई पेंटिंग, कभी फिर रसों में खेलिए, श्रृंगार रस का बनाइए। बच्चों को समझ नहीं आएगी तो हास्य का बनाइए। चलो कोई गांव का ऐसा लगना चाहिए कि हमारे पापा कैसे खड़े होते हैं। फ्रीज जब कहे तो पापा जैसे खड़े होना, फ्रीज कहे तो मम्मी जैसे खड़े होना, फ्रीज कहे तो टीचर जैसे खड़ा होना, या फ्रीज कहे तो शाहरुख खान जैसे खड़ा होता है। जो उनकी कॉमन पहले शुरू करें जिससे वो रिलेट कर सकते हैं, जिनके वो ज्यादा नजदीक है। फिर उनके बाद धीरे धीरे हम थोड़ा उनका एरिया बढ़ाते हैं। फिर क्लैप की अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, जिप जैप ओ वाला ये भी था। इसके अलावा रिदम की एक एक्सरसाइज, जैसे चलिए मेरे साथ चलिए, ये आप करते हो, ठीक है। अब देखिए, अभी कुछ जगह चटपट हो रही है, लेकिन है ना, लेकिन इसको आप रिदम करेंगे तो अपने आप आपने कोई ना तबला लिया ना ढोलक ली, फिर भी आपने रिदम ले ली। तो ये रिदम का सेंस आपको क्लैप के माध्यम से। इसके बाद काउंटिंग गेम होता है 15 मिनट बस, ठीक है। तो मैं जी तो मैं आपको अभी बाइंड अप कर रहा हूँ, और ये सारी चीजें एक बार रनिंग में बता देता हूँ। क्लैप की हो सकता है, नंबरिंग के गेम होते हैं, हेड टू टो एक्सरसाइज हो गई। फिर पेयर बनाने की 5 का 10 का, उस पेयर को बढ़ाते जाओ कि क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब आपने बिना कुछ कहे उसकी सारी जानकारी आप लेनी। फिर एक होता है आई से रन, कि मैंने आई से कुछ कहूंगा तो आपको ऑर्डर फॉलो करना है, और आई से बिना कुछ भी कहूँ आपको ऑर्डर फॉलो नहीं करना। जो अभी आज कराते तो बहुत कॉमिक गेम है उसकी तरह से। फिर डिफरेंट तरीके से वॉक हो गई, लीडर फॉलो द लीडर जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। तो ऐसी छोटी छोटी थिएटर की एक्सरसाइजेज होती हैं। और आप नोट कर लीजिएगा, एक है रेखा जैन की एक किताब है थिएटर गेम्स के ऊपर, बाल रंगमंच, वो आपको NSD लाइब्रेरी शॉप पे मिल जाएगी। किसी को जरूरत पड़ेगी तो मुझे व्हाट्सएप पे बोलना, मैं अमेज़न वगैरह पे आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उससे भी देख के आप धीरे धीरे इनको डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अब आपके लिए एक माइम की प्रस्तुति हमारे बच्चे लेकर आए हैं, 15-17 मिनट की है। तो मेरी इच्छा है कि आप लोग यहीं बैठे और यहीं ओपन में उसकी प्रस्तुति